Hello everyone, welcome to Agrinama family. As you all know that we are making a series in which we are covering the entire syllabus of ASRB NET Agriculture, Entomology and Geology. So welcome to our third video of this series in which we are going to cover the topic from Unit 2 Morphology, which is body regions, segmentation, sclerites and sutures. So the body regions. The body regions, it is also known as stegmata, and the body regions of the insect is divided into three regions: the head, thorax and abdomen. So the head consists of mouth parts, compound eyes, simple eyes and a pair of antennae. The thorax consists of three segments: prothorax, mesothorax and metathorax. On the meso and metathorax are together known as pterothorax. All the three thoraces segment possesses a pair of legs. Means on every segment of the thorax, the meso, meta and pro, a pair of legs are found, and on meso and metathorax a pair of wings found. Means one pair of wings is found. The last part of the insect body is abdomen. It is 7 to 11 segmented with genital appendages on 8th and 9th segments. Means the reproductive organs are found on the 8th and 9th segment on the insect body. Segmentation. In general, insect body is divided into series of segments which are primitive arthropods known as somites and metameres. During the process of evolution, these somites get fused with each other in different ways, forming body parts of the existing arthropods. The type of arrangements of these body segments is in embryonic stage is known as primary segmentations, while in adult insects is known as secondary segmentation, which differ from primary in having sclerotized membranous intersegmental region. So what is sclerites and sutures of the insect head? So the head capsule is formed by the union of number of sclerites or cuticular plate areas which are joined together by the means of cuticular lines or ridges known as sutures. Means the plates which forms the surface of the insect head are known as sclerites, and the lines, cuticular lines or ridges which joins the two sclerites together are known as sutures. These sutures provide mechanical support to the cranial wall. A general insect possesses following sclerites. So now we will talk about different types of sclerites found in insect head. So labrum, it is the small sclerite that forms the upper lip of the mouth cavity. It is freely attached or suspended from the lower margin of the clypeus. As you all see that here. So we will talk about labrum. It is a small sclerite that forms the upper lip of the mouth cavity. It is freely attached or suspended from the lower margin of the clypeus. As you can see in the structure, the blue colored portion is known as labrum. Just above it, it's clypeus, and after it, the frontal face area of the insect is known as frons. The two side areas are known as gena, and the portion in red color on the lower side along the side of labrum and clypeus is known as mandibles. The other portions of the insect head are vertex, ecdysial cleavage, compound eyes and antennae. So vertex, it is the top portion of the head behind the frons or the area between the two compound eyes. So between the two compound eyes, the area is known as vertex, epicranium. It is the upper part of the head extending from vertex to the occipital suture. So it starts from the vertex and ends to the occipital suture. Occiput, it is inverted U-shaped structure representing the area between the epicranium and post occiput. तो ये क्या है, आपका U-shaped होता है और ये epicranium से लेके post occiput तक पाया जाता है. पोस्ट ऑसिपुट क्या होता है? इट इज एन एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट हेड दैट रिमेन्स बिफोर द नेक रीजन. ये आपका नेक रीजन से जस्ट पहले पाया जाता है. उसका जीना क्या है? जीना जो आपके फ्रॉन्स के अगल बगल जो दो आपके अलोंग साइड दोनों साइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीना कहते हैं. Then sutures. So all the above sclerites get attached to the cuticle ridges or sutures to provide the attachment for the muscle inside. So जैसे मैंने बताया था कि जो आपका different sclerites हैं उन सबको जोड़ने के लिए जो एक तरह का समझ लीजिए ग्लू टाइप का, मतलब एक तरह का बीच में कनेक्शन टाइप का जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सूचर्स. सो दीज सूचर्स आर
क्लाइपियोलैब्रल सूचर्स, क्लाइपोफ्रंटल सूचर, epicranial suture, occipital suture, and there are many other which we will explain in the next slide. So क्लाइपोलैब्रल सूचर कौन सा होता है? ये वो सूचर होता है जो क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में पाया जाता है। क्लाइपोफ्रंटल कौन सा सूचर होता है? जो क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में पाया जाता है। एपिक्रेनियल सूचर ये एक वाई शेप्ड सूचर होता है जो कि पूरी बॉडी में फेशियल रीजन में एक्सटेंड होता है, और ये आपका इसे लाइन ऑफ वीकनेस और एक्डाइसल सूचर भी कहते हैं, क्योंकि जब एक्डाइसिस होता है, आप जब आगे की वीडियोस में जब आप पढ़ेंगे कि मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस के बारे में, तब आपको बताया जाएगा कि एक्डाइसिस क्या होता है। तो एक्डाइसिस वाले टाइम पे आपका जो इंसेक्ट का आउटर सरफेस होता है, जो क्यूटिकल होती है, वो टूटती है। तो वो इसी इलाके से, इसी रीजन से टूट के और फिर आगे आपका मोल्टिंग की प्रोसेस शुरू होती है। ऑसिपिटल सूचर क्या होता है? ये एक यू शेप्ड सूचर होता है एपिक्रेनियम और ऑसिपिट के बीच में। Next, post occipital suture. It is the only suture in insect head. Posterior end of the head is marked by the post occipital suture, to which the sclerites are attached, as this suture separates the head from the neck, hence named real suture. जो post occipital suture होता है उसे real suture कहते हैं, क्योंकि जो insect head होता है उसको ये neck से अलग करता है। मतलब neck और head के बीच का जो connection होता है वो कौन सा होता है? उस suture को क्या कहते हैं हम लोग? पोस्ट ऑसिपिटल सूचर। जीनल सूचर जो आपके जीनास के अगल बगल होता है, लेटरल साइड होता है, उसे जीनल सूचर कहते हैं। ऑकुलर सूचर जो आपकी कंपाउंड आइज के अगल बगल हो, जो कंपाउंड आइज के एरिया को बॉडी इंसेक्ट के बाकी हेड के एरिया से कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑकुलर सूचर। एंटिनल सूचर जो आपके एंटीना के अगल बगल जो सूचर पाया जाएगा उसे एंटिनल सूचर कहते हैं। Then insect head. The insect head is a hard, highly sclerotized, compact structure. As we had told you in the prior video कि ये हार्ड होता है, आपका इंसेक्ट हेड जो होता है वो हार्ड होता है। जो इंसेक्ट की पूरी बॉडी होती है वो हार्ड होती है, तो इंसेक्ट हेड आपका हार्ड होता है। इट इज द फोरमोस्ट पार्ट इन द इंसेक्ट बॉडी कंसिस्टिंग 6 सेगमेंट दैट आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ हेड कैप्सूल। जो आपका इंसेक्ट का इट इज द फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी कंसिस्टिंग 6 सेगमेंट दैट आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ इंसेक्ट हेड। जो मैंने आपको 6 सेगमेंट्स बताए, आपको आगे चल के मैं 6 सेगमेंट्स बताऊंगा जिन जो फ्यूज होते हैं एक दूसरे में, और वही मिलके क्या बनाते हैं? इंसेक्ट हेड। कई लोग कई बार क्वेश्चन पूछता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्लेराइड्स में और सेगमेंट्स में। सो स्क्लेराइड्स और सूचर्स अलग चीज है और सेगमेंट्स आपके अलग चीज है। जैसे अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो प्री एंटीनरी सेगमेंट्स, एंटीनरी सेगमेंट्स, इंटरकैलेनरी सेगमेंट्स, मैंडिबुलर सेगमेंट, फर्स्ट मैक्सिलरी सेगमेंट, सेकंड मैक्सिलरी सेगमेंट्स। तो ये कुछ आपके सेगमेंट्स हैं, और उसके बाद उसके अपेंडेजेस लिखे हुए हैं कि कौन से अपेंडेजेस उस सेगमेंट पे पाए जाते हैं। जैसे प्री एंटीनरी सेगमेंट पे कौन सा? उस पे कोई अपेंडेजेस नहीं होते हैं। एंटीनरी सेगमेंट पे एंटीना पाया जाता है। इंटरकैलेनरी सेगमेंट्स पे कोई अपेंडेजेस नहीं होता है। मैंडिबुलर सेगमेंट पे मैंडिबल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट मैक्सिलरी सेगमेंट पे मैक्सिली पाया जाता है। सेकंड मैक्सिलरी सेगमेंट जिसे लेबियल सेगमेंट भी कहते हैं, उस पे आपका लेबियम पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ हेड। सो कौन कौन से टाइप के हेड हैं हमारे पास? हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उसमें 3 तरह के हेड पाए जाते हैं, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस, ओपेस्टोगनेथस। सो हाइपोगनेथस टाइप का हेड क्या होता है? ये वर्टिकल रहता है एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब क्या होता है कि ये एकदम सीधा रहता है इंसेक्ट की बॉडी से। उसके बाद आता है आपका प्रोगनेथस। प्रोगनेथस क्या होता है? ये आपका जो होता है हेड, ये सेम एक्सिस में होता है, मतलब ये स्ट्रेट रहता है आपके बॉडी से इंसेक्ट की। और जो आपका लास्ट टाइप है वो ओपिस्टोगनेथस है। ओपिस्टोगनेथस क्या होता है? ये थोड़ा सा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ झुका होता है, जो 4 लेग्स के बीच में ये आपका इस टाइप का आपका माउथ हेड पाया जाता है। इसे ओपिस्टोसिंक्रोनस टाइप भी कहा जाता है। ये बग्स में पाया जाता है। और बाकी दोनों आपके, जो आपका हाइपोगनेथस है वो आपका कॉकरोच और ग्रासहॉपर में पाया जाता है, और जो प्रोगनेथस है वो बीटल्स में पाया जाता है। सो एंटीना। एंटीना क्या होता है? वो एक सेंसरी ऑर्गन है। प्रीओरल अपेंडेजेस होते हैं ये। और उसके बाद क्या होता है? ये आपके सेकंड और एंटीनल सेगमेंट्स ऑफ द हेड पोजेसिंग नर्व्स कमिंग फ्रॉम द ड्यूट्रोसेरेब्रम ऑफ द ब्रेन। सो दे आर वेल डेवलप्ड इन एडल्ट्स एंड पुअरली डेवलप्ड इन इमेच्योर स्टेजेस। कि ये आपका जो अडल्ट स्टेजेस होते हैं उसमें तो काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जो इमेच्योर स्टेजेस होते हैं उसमें कई बार नहीं पाया जाता है या पुअरली डेवलप होता है। प्रोट्यूरा ऑर्डर में आपके एंटीनीज नहीं पाई जाती हैं। ये इन्हें यूनिरेमस भी कहते हैं। यूनिरेमस मतलब अनब्रांच्ड, सेगमेंटेड एंड
segmented and mobile structure which are basically fixed to the deep antennal socket called antifer। जो आपका एंटीना होता है वो कहाँ पे कनेक्टेड होता है? एंटीफर से। जिस रीजन से आपका एंटीना कनेक्टेड है इंसेक्ट के हेड से, उस रीजन क्या कहेंगे? एंटीफर। सो एंटीनल सॉकेट इज प्रोवाइडेड विथ एन एंटीनल सूचर। सो आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि एंटीनल सूचर पाया जाता है। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के एंटीना का। इसमें स्केप है सबसे पहला रीजन। आप सबसे पहला रीजन देखेंगे तो आपका एंटीफर है। जो एंटीफर रीजन है जिससे आपका इंसेक्ट का एंटीना कनेक्टेड है इंसेक्ट के हेड से। उसके बाद आता है आपका स्केप, फिर पेडिसल, फिर फ्लैजुलम। सो स्केप क्या होता है? ये फर्स्ट सेगमेंट होता है और ये एंटीफर से कनेक्टेड होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है इंसेक्ट की एंटीना को। पेडिसल क्या होता है? सेकंड और मिडिल सेगमेंट ऑफ द एंटीनी दैट फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन द स्केप एंड फ्लैजुलम। पेडिसल क्या काम करता है? स्केप और फ्लैजुलम के बीच में कनेक्शन के रूप में काम करता है। और इसी पे जॉन्स्टन ऑर्गन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछ देता है कि जॉन्स्टन ऑर्गन कौन से ऑर्गन, जॉन्स्टन ऑर्गन इंसेक्ट की एंटीनी के कौन से पार्ट पे पाया जाता है? सो इंसेक्ट की कौन से पार्ट पे जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है? पेडिसल पे। फ्लैजुलम क्या होता है? ये लास्ट एंटीनरी सेगमेंट है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं और ये हर इंसेक्ट में अलग अलग साइज का होता है। कोलम्बोला और डिप्लूरा में फ्लैजुलर जो होता है सेगमेंट आर मस्कुलर इन नेचर एंड रिगार्डेड एज ट्रू सेगमेंट एंड द एंटीना इज नोन एज सेगमेंटेड टाइप। जो आपका कोलम्बोला और डिप्लूरा है उसमें आपका सेगमेंटेड टाइप का पाया जाता है, जो आपका फ्लैजुलर है, और इसीलिए उसको सेगमेंटेड टाइप के एंटीनी कहा जाता है। जॉन्स्टन ऑर्गन किसे कहते हैं? जॉन्स्टन ऑर्गन जो है आपका वो एब्सेंट होता है कोलम्बोला और डिप्लूरा में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जॉन्स्टन ऑर्गन का काम क्या होता है। जैसे कि ऑडिटरी ऑर्गन है एक जॉन्स्टन ऑर्गन, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग ऐसे कौन कौन से और ऑर्गन्स होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी में पाए जाते हैं जो सेंस ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो अब हम लोग अलग अलग टाइप के एंटीनास के बारे में देख रहे हैं कि जो एंटीना फिलीफॉर्म टाइप का सबसे पहला एंटीना होता है वो किसमें पाया जाता है? ग्रास हॉपर में। इसमें क्या होता है कि ये आपका यूनिफॉर्म होता है कि बेस से लेके और एंड तक कुछ खासा डिफरेंस नहीं होता है, एकदम यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद सिटेशियस आता है। सिटेशियस किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। इसका साइज क्या होता है? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब इसका जो स्केप होता है वो तो थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन जो आपका लास्ट फ्लैजुलम होता है, फ्लैजुलम थोड़ा सा एकदम पतला हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। मोनिलीफॉर्म टर्माइट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह लगता है, मतलब मोतियों की माला की तरह लगता है ये वाला एंटीना। उसके बाद पेक्टिनेट है। आप लोगों ने अपने घर में जरूर कंघी देखी होगी, तो ये वाला जो आपका एंटीना है ये आपका कंघी की तरह लगता है। ये पाया जाता है फीमेल आर्क्टिड मॉथ में। बाइपेक्टिनेट किसमें पाया जाता है? मलबरी सिल्कवॉर्म में। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये टाइप का एंटीनी किसमें पाया जाता है, तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए और इसको याद करिए। तो बाइपेक्टिनेट किसमें पाया जाता है? मलबरी सिल्क मॉथ में और मेल लिमेंट्रेड मॉथ में। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका बोथ साइड्स होता है, मतलब अगर कोई ऐसी कंघी हो जिसमें दोनों तरफ से झाड़ने वाला बाल हेयर्स को कॉम्ब करने वाला रीजन दे रखा हो, तो ये किसमें पाए? ये वाला क्या, इस वाले कंघी को क्या कहेंगे? बाइपेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीनी। सिरेट केस में पाया जाता है पल्स बीटल में और ज्यूल बीटल में। ये क्या होता है कि फ्लैजुलम के जो सेगमेंट्स होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, प्रोजेक्टिंग पॉइंट्स ऑन वन साइड गिविंग सॉ लाइक अपीयरेंस। मतलब ये हंसुए की तरह लगती है, सॉ लाइक, जिससे हम लोग जिससे आजकल किसान घास वास काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी तरह दिखता है। क्लेवेट क्या है आपका? क्लेवेट टाइप की एंटीनी पाई जाती है बटरफ्लाइज में। सेगमेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज इन डायमीटर विद बेस टू टिप एंडिंग इन अ क्लब लाइक एपिकल पार्ट। तो इसमें क्या होता है आपका बेस तो नीचे वाला रीजन थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते थोड़ा सा मोटा होते जाता है। कैपिटेट रेड फ्लोर बीटल में पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन डायमीटर, मतलब जो इसका साइज होता है ये भी हल्का 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 लास्ट तक बढ़ता रहता है। स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लास्ट में। जेनिकुलेट क्या होता है? ये आपका आंट्स और हनीबी में पाया जाता है और ये टाइप का एंटीनी, इसका जो पहला सेगमेंट होता है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है और जो फ्लैजुलम होता है वो आपका एक एंगल बनाता है किसके साथ? आपके स्केप के साथ। उसके बाद क्या आता है? लैमिलेट। ये आपके राइनोसोरस बीटल में पाया जाता है और ये आपका एक साइड प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इसको अगर ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता तो ज़्यादा बेटर आप लोग समझ पाते कि ये जैसे वो
हाथ वाला जो पंखा होता है वो वैसा दिखता है कुछ ये। उसके बाद आता है आपका फ्लेवलेट, ये स्टेप्लॉइड्स और मेफ्लाइज में पाया जाता है। प्रोजेक्शंस ऑफ सम अपर सेगमेंट्स बिकम लॉन्ग एंड फॉर्म अ फेदर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लेबुला। तो इसमें क्या होता है कि जो अपर सेगमेंट्स होते हैं वो कुछ लंबे हो जाते हैं और फेदर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। प्लूमोस ब्रश लाइक विद डेंस हेयर्स, मेल मॉस्किटो, जो प्लूमोज है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है और मेल मॉस्किटोज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इसके सेगमेंट्स होते हैं, मतलब जहां जहां से इसमें सेगमेंटेशन होता है वहां वहां पे हेयर्स आ जाते हैं। उसके बाद है आपका वोल्डेड, फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है। ये लुक लाइक प्लूमोज बट ईच वोल कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हेयर्स। ये आपका प्लूमोज ही जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका हर सेगमेंट पे थोड़े कम बाल पाए जाते हैं। देन आपका है एरिस्ट्रेट। एरिस्ट्रेट आपका हाउस फ्लाई में पाया जाता है। ये आपका एंटीनी आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक 3 सेगमेंटेड। द थर्ड सेगमेंट इज इनलार्ज एंड बियर्स अ ब्रिस्टल कॉल्ड एरिस्ट्रा और डॉर्सल। तो आप इसमें जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो इसका थर्ड सेगमेंट है, जो इसका फ्लैजेलम है, वो आपका थोड़ा सा इलोंगेटेड है, बड़ा हो गया है, और उसमें आपका एक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद आता है स्टाइलेट, एंटीनी विथ स्टाइल, रॉबर फ्लाइज में पाया जाता है। एंटीना आर स्मॉल 3 to 4 सेगमेंटेड इलोंगेट इनटू अ ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। तो इसमें क्या होता है आपका जो एंटीना होता है 3 to 4 सेगमेंटेड होता है, इलोंगेट होता है और ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहते हैं। उसके बाद आता है आपका फंक्शंस क्या है एंटीनी के। तो एंटीनी का जो मेन फंक्शन है वो आपका है टू सेंस to work as a sense organs, means to sense different things in the atmosphere like touch, smell, odor, humidity, temperature। इन सबको क्या करता है वो डिटेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ वो एयर करंट और विंड स्पीड को भी डिटेक्ट करता है। इसमें कुछ अदर टाइप के सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे जॉन्स्टन ऑर्गन के बारे में आपको बताया गया। ये आपका एक ऑडिटरी ऑर्गन है कि ये साउंड से रिस्पॉन्ड करने में इंसेक्ट को हेल्प करता है, और साथ ही स्पीड क्या है एयर करंट की। Helps the mandible for holding prey and mastication of food material। आपका ये मैंडिबल्स के साथ प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है। प्रे मतलब जिसपे ये फीड कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास किसी तरह की एंटीनी पाई जाती है, वो अगर किसी और इंसेक्ट पे प्रे कर रहा है, जैसे प्रेइंग मेंटिड्स है, तो प्रेइंग मेंटिड्स के जो फोरलेग्स होते हैं वो जब अपने शिकार को पकड़ते हैं तो कुछ टाइम पे आपकी एंटीनीज भी उसकी हेल्प करती हैं अपने शिकार को पकड़ने में। हेल्प्स इन सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म, सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म में मदद करता है, और फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम पे पकड़ने में मदद करता है। क्लैस्पिंग के यूजफुल फॉर क्लैस्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। एड इन रेस्पिरेशन फॉर फॉर्मिंग एन एयर फनल इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स, और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं उसमें एयर फनल के तौर पे भी काम करता है। सो माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, तो ये कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं जो खाने को ग्रैस्प करने मतलब खाने को लेने में मदद करते हैं। जो टिपिकल एक इंसेक्ट का माउथ पार्ट होता है उसमें आपका लेब्रम होता है, मैंडिबल्स होता है, मैक्सिली होता है, लेबियम होता है और हाइपोफेरिक्स होता है। जो लेब्रम होता है वो अपर लिप के तौर पे काम करता है, जो लेबियम होता है वो लोअर लिप के तौर पे काम करता है, मैंडिबल्स जो होते हैं आपके वो जॉ के तौर पे अपर जॉ के तौर पे काम करते हैं, और जो आपके मैक्सिली होते हैं वो लोअर जॉ के तौर पे काम करते हैं, और जो हाइपोफेरिक्स होता है वो एक टंग के तौर पे काम करता है। उसके बाद अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं इंसेक्ट में, जैसे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप पाया जाता है आपका ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेज में। उसके बाद सकिंग एंड हॉस्टुलेट टाइप, इसमें आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, चीविंग टाइप, शिफॉनिंग टाइप। तो ये सब आपके पाए जाते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप किसमें पाया जाता है? प्लांट बग्स एंड मॉस्किटो में। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप पाया जाता है थ्रिप्स में। स्पॉन्जिंग टाइप इन अडल्ट हाउस फ्लाइज, इन चीविंग एंड लैपिंग टाइप इन हनी बीज, शिफॉनिंग टाइप इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। और दो अलग टाइप के और पाए जाते हैं, जैसे विच आर नोन एज मास्क टाइप एंड डीजेनरेट टाइप। मास्क टाइप आर फाउंड ऑन नेट्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई एंड डीजेनरेट टाइप फाउंड ऑन मैगेट्स ऑफ डिप्टेरा। So, biting and chewing type of mouth parts. This type of mouth parts are found in primitive insects, primitive and found in order Orthoptera, Isoptera, Coleoptera, larva of Lepidoptera, Neuroptera, etc. So ये जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके आप लोग एक एक एग्जांपल्स कमेंट में लिखें कि ऑर्थोप्टेरा का कौन सा इंसेक्ट आप लोग जानते हैं, आइसोप्टेरा का कौन सा जानते हैं, कोलियोप्टेरा का कौन सा जानते हैं, लार्वा का कौन सा जानते हैं, लेपिडोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा का कौन कौन सा इंसेक्ट आप लोग जानते हैं।
So, labrum. It is a small scleroid that forms the upper lip of the mouth cavity. It protects the mandibles and helps in closing the mouth cavity and guide the food into the mouth. So क्या होता है कि labrum जो है जैसे आपको बताया गया कि वो अपर लिप के तौर पे काम करता है और खाने को मुंह के अंदर ले जाने में गाइड करता है. Mandibles क्या होते हैं? ये अनसेगमेंटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्क्लेरेटाइज्ड होते हैं और जॉ के तौर पे काम करते हैं. जॉज मतलब चीविंग के तौर पे के लिए काम करते हैं. दे आर अटैच्ड टू द हेड कैप्सूल बाय मींस ऑफ टू जॉइंट्स नोन एज गिंगिमुलस एंड कॉर्डाइल. And they possess teeth-like molars and incisors that help in the process of cutting the food material. Each mandible is moved by powerful abductor and adductor muscle. Maxilla क्या है आपका? Maxilla भी आपका ट्रायंगुलर आपकी paired homologous structure है. Basal triangular cardo, middle rectangular stripes and lateral pellifer bearing maxillary palpi and lobe like inner lacina and outer gallia. Maxillary palps possesses olfactory and gustatory receptors एंड फंक्शंस है सेंसरी ऑर्गन्स. सो जो मैक्सिलरी पैल्प्स होती हैं उसमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं. देखिए जैसे आप लोग को दो और तरह के रिसेप्टर्स के बारे में पता चला जो ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं. उसके बाद आपका लेबियम होता है. तो लेबियम आपका लोअर लिप होता है, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मैक्सिलरी. ये आपके मुंह को नीचे से बंद कर, ये जो इंसेक्ट का मुंह होता है उसको नीचे से बंद करने में हेल्प करता है. उसके बाद ये आपका प्रॉक्सिमल प्रीमेंटम में डिवाइडेड होता है. प्रॉक्सिमल प्रीमेंटम, सेंट्रल मेंटम एंड डिस्टल सबमेंटम. द मीडियम पेयर इज ग्लोसा, आउटर पैराग्लोसा टुगेदर कॉल्ड लिगुला एंड दैट फंक्शन एज द मेनली एज गस्टेटरी सेंस ऑर्गन्स. तो इसमें गस्टेटरी सेंस ऑर्गन्स के तौर पे ये काम करता है. हाइपोफेरिक्स क्या होता है? ये एक टंग होता है जो बीच में पाया जाता है इंसेक्ट के माउथ के, और ये लेब्रम और लेबियम डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स ओपन्स और नियर इट्स बेस. तो इसी के बेस के पास में जहां से मतलब ये जुड़ा होता है उसी के पास में आपका फूड डक्ट स्टार्ट होता है जहां से इंसेक्ट का डाइजेशन चालू होता है. उसके बाद आपका सकिंग टाइप माउथ पार्ट. सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ये आपका प्लांट, इसके दो टाइप्स होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, जो प्लांट बग्स और मॉस्किटो में पाए जाते हैं. ये पियर्सिंग कि प्लांट के टिश्यूज को पियर्स करने के लिए और प्लांट्स की सैप को सक करने के लिए और या फिर ब्लड और नेक्टर सक करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं. प्लांट माउथ पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रोस्ट्रम beak which is modification of labium. It acts as pouch for protecting the mandibular and maxillary styles. Mandibles and maxillae are modified into sharp needle-like styles. The mandibular styles form the outer pair and possesses serrated margins at their tip. The maxillary styles form the inner pair having smooth curved tips and combine together enclosing a food channel. तो इसमें क्या होता है कि मेंडली और मैक्सिली होते हैं शार्प निडल के तौर पे मॉडिफाइड होते हैं. मैंडिबुलर स्टाइल्स जो होते हैं वो सीरेटेड मार्जिन्स होते हैं और मैक्सिलरी स्टाइलेट्स जो होती हैं वो इनर पेयर होती हैं हैविंग स्मूथ कर्व टिप्स एंड कंबाइंड टुगेदर इनक्लोजिंग अ फूड चैनल. तो वो सब एक साथ कर्व्ड होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं? फूड चैनल फॉर्म करती हैं, को enclose करती हैं. The food channel is divided into upper Siberium and lower Siberium with the help of groups present inside the maxillary styles. The hypopharynx is modified into pharyngeal pumps and situated at the tip of the food channel. जो आपका hypopharynx होता है वो pharyngeal pump के तौर पे modify होता है और कहाँ पाया जाता है? food channel की टिप पे. तो labrum is modified into small flap-like structure at the base of the rostrum. और labrum कहाँ पाया जाता है आपका? रोस्ट्रम के बेस पे, और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. आप जैसे इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि लेब्रम आपका जस्ट उसके नीचे पाया जा रहा है, उसके नीचे मैंडिबल्स, मैक्सिलरी और लेबियम नाम की अलग अलग आपकी स्टाइलेट्स फॉर्म हुई हैं. तो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन थ्रिप्स. इसमें क्या होता है कि ये असिमेट्रिकल होते हैं और जो इसका राइट मैंडिबल होता है वो रूडिमेंट्री होता है. ये आपके चीविंग टाइप और पियर्सिंग टाइप के बीच का माउथ पार्ट्स है और मतलब इन दोनों के बीच में फॉल होता है. ये ना बाइटिंग अप्रोप्रिएट टाइप की होती है और ना ही ये पियर्सिंग टाइप का होता है. तो ये आपके इन दोनों के बिटवीन में आता है. तो माउथ पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय माउथ कोन व्हिच इज फाउंड बाय द लेब्रम एंड क्लाइपियस अबव द लेबियम एंड बिलो. With the beak, mouth, cone, hypopharynx and left mandible is present. Right mandible is absent, whereas the left mandible is modified into a mandibular stylet. So जो left mandible होता है वो modify हो जाता है mandibular stylet में. The maxillary are modified into maxillary stylets and are mainly useful for sucking. जो ये किस लिए useful होता है? Sucking के purpose के लिए.
उसके बाद स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. सो दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबोसिस फाउंड फ्रॉम द लेबियम. ये किसमें पाया जाता है? आपका हाउस फ्लाई में. तो इसमें आपका जो नीचे एक स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो आपका फूड मटेरियल होता है उसके ऊपर प्रेस किया जाता है और उसी के थ्रू जो वेन्स होती हैं, जो उसके अंदर की डिफरेंट ट्रैकियाज होती हैं, उसके थ्रू फूड सक किया जाता है. तो इस टाइप के फूड माउथ पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. इसमें द सूडो ट्रैकिया गेट फिल्ड विद द फूड मटेरियल बाय द कैपिलरी एक्शन एंड द सक्ड अप द मटेरियल एट द सेंटर पॉइंट इनटू द ऑसोफेगस. तो वहीं से क्या होता है कि जो फूड सक होता है और सूडो ट्रैकियाज के थ्रू जाता है कहां तक? ऑसोफेगस के तक. उसके बाद चीविंग एंड lapping type of mouth parts. The labrum and mandibles are biting type, whereas maxillary, labium and hypopharynx combine together to form a sucking proboscis. So maxillary, labium और hypopharynx एक साथ आते हैं sucking proboscis बनाने के लिए, मतलब चूसांग बनाने के लिए कि जो सक करना है जिस ऑर्गन से वो ऑर्गन बनाने के लिए. The mandible are dumbbell shaped, non-trophic, industrial in function. The cardo of maxillae unite with submentum of labium, forming an inverted V-shaped lorem. The maxillary palpi are very small or reduced. Gallia and lysina of maxillary remain suspended from the cranial wall and attached to the lorem. Labial palpi are conspicuous and four-segmented. Elongated central organ of the proboscis in the glossa. At the base of the glossa are two small concealed lobes are paraglossa and glossa is provided with long hairs and a small spoon-shaped lobe called flabellum and button at its apex. So you can see that जो आपके मैक्सिलरी, लेबियम और हाइपोफेरिक्स हैं वो आपके मॉडिफाई होते हैं यहाँ पे और आपका वही सकिंग प्रोबोसिस फॉर्म करते हैं और यहाँ पे जो बीच वाला ऑर्गन है उसके नीचे एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ड्यूरिंग फीडिंग दे आर स्ट्रेटन्ड एंड लेबियल पल्पी क्लोजली अप्लाइड टू ग्लोसा एंड पार्टली एम्ब्रेस्ड बाय द एनशीथिंग ऑफ द गैलिया एंड लेसिनिया. ये आपका जब फूड ईट करना है उसको तो ये बड़ा सीधा हो जाता है और फूड को ईट करता है और रेस्ट के टाइम पे ये हेड के अगेंस्ट मुड़ा हुआ रहता है. उसके बाद सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. दीज आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर टेकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. ये आपके नेक्टर से फ्लावर से नेक्टर सक करने के लिए स्पेशली मॉडिफाइड होते हैं ये दिस टाइप के एंटिनी. ये स्लेंडर होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं. इलोंगेटेड कॉइल प्रोबोसिस अंडरनीथ द हेड ड्यूरिंग द नॉन फीडिंग. ये नॉन फीडिंग के टाइप पे क्या होता है? हेड के नीचे कॉइल्ड होते हैं. इसमें मैंडिबल्स टोटली एब्सेंट होते हैं. द लेब्रम एंड मैक्सिलरी पेल्पी आर रिड्यूस्ड. जो लेब्रम है और मैक्सिलरी पेल्पी है वो रिड्यूस्ड होता है. जो लेबियम है वो मॉडिफाइड होता है स्मॉल बेसल प्लेट के तौर पे और द फूड चैनल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ द गैलिया. जो फूड चैनल है वो गैलिया के फ्यूजन से फॉर्म होता है. द नेक्टर विल बी सक्ड फ्रॉम द फ्लावर्स थ्रू मस्कुलर एक्शन. जो आपका नेक्टर है वो फ्लावर्स के मस्कुलर एक्शन के द्वारा सक किया जाता है. As in this video we had covered the major important topics of the ASRB NET Agriculture Entomology and Zoology syllabus, and I hope you had enjoyed the video and you had liked the content which you had watched. So please subscribe the channel, press the bell icon and like the video, and as you can share to your agriculture friends for helping them in their next exam. So because AgriNama makes you ready for your next examination, please subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the next video. Thank you.